तो मैंने वहां पर टेक्स्ट डाल दिया है। मनोज जी, आपकी फेसबुक आईडी क्या है? फेसबुक आईडी वेब डॉट एक्सपर्ट्स के नाम से होगी। वेब डॉट एक्सपर्ट्स। ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, अगर फेसबुक पेज से टैग होते हैं सारी, मैं आपको टैग कर देता हूँ। सॉरी, मैं पहली बार फेसबुक में लाइव कर रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है थोड़ा मुझे टाइपिंग में। तो वी आर रेडी टू गो लाइव। Hello everyone, welcome to the first webinar by Techneki and Tri-City IT Entrepreneur. So this webinar's main aim is to spread the knowledge about technology and how it impacts our life. So this webinar is, as I said, hosted by Techniki and IT entrepreneurs. Before starting the webinar, I would like to tell you about what these organizations meant for. So, Site Techniki was built on an aim to updating the world, and we have always focused to tell people about the truth of technology and how this whole world is spreading, how we all are part of this tech ecosystem. Either we are developing it, or either we are doing businesses in it, or either we are using it in our daily lives. So technology is all about you, and at Technically we believe to spread it to you guys. Now, so this webinar can't be possible without the help of our friendly organization Tri-City IT Entrepreneurs, and I really like to thank Mr. Vivekji, to whom I shooted this idea that let's we do this webinar of spreading the knowledge about technology. Tri-City Entrepreneurs, those who don't know, is a community of the IT entrepreneurs based in Tri-City area. That's mostly Mohali, Chandigarh, and nearby surrounding cities. Like I am from Ludhiana, but I am also part of that community, and I believe it's doing a really great job. So let me introduce to you guys to our panelists, and I would request them to turn on their video once I'll take their name. So, the first panelist of our this event is Mr. Manoj Tyagi. He is a well-known
developer, and he's working in this field of .NET development since many long time. So I would like Mr. Manoj Tyagi to open their video. Hi guys, this is Manoj Tyagi, and I am a developer and entrepreneur. And I am board of member of IT and Tri-City IT Entrepreneur Group. And I most welcome to all of you in this technical discussion here. Okay. So thanks, Manojji. So I'll come back to you once we start this webinar. So now next panelist of ours is Mr. Amanpreet Singh. So Amanpreet Singh is a cybersecurity expert, and he's been part of many reputed organizations and part of Technique since we started in 2016. So Aman, please introduce yourself. Hi Saib, I'm Aman and I'm an ethical hacker at IT company and a part of Technique also. Now our next panelist is Miss Rubal Khosa. So she was among the first writers, those who came into Technique in year 2016 when we were hiring for the interns, and she's like a technology expert in daily life. So Miss Rubal, please introduce yourself to the public. Hi guys, I'm Rubal and I've been a part of Technique for a while. And now I'm doing my MBA along with working like part-time. So I welcome all of you here in this webinar. So now Mr. Vivekji has connected to us, our president and founder of Tri-City IT Entrepreneur. I would like Vivekji to introduce himself and tell a little bit about Tri-City IT Entrepreneurs. Hello everyone, my name is Vivek Sharma. Tri-City IT Entrepreneurs is a community of 251 IT entrepreneurs of Tri-City. We founded this community in September 2019, and now 1 year of Tri-City IT Entrepreneurs has done. And we have done many events in Tri-City IT Entrepreneurs. We went to many colleges, we gave many speeches. Sahib Gun Basin was also with us in many events of Tri-City IT Entrepreneurs. He is my younger brother, and I am always with him. He is always with me, and we together will do many big things. And I want to say one thing: together is a very big word, right? Sahib Gun Basin himself is a lion. He alone can do everything. Every one of you knows that. And as I said, together is a big word. So Sahib Gun Basin, my younger brother, and me together will do it. And I also want to say one more thing, that soon, next week, next Sunday, we will launch one chapter of Ludhiana IT Entrepreneurs, and Sahib Gun Basin will lead that chapter. He will become the president of Ludhiana IT Entrepreneurs, and he will work as a younger brother of Vivek Sharma. And we, as I said, together is a very big word. So me and Sahib Gun Basin together will lead the IT entrepreneurs communities of Punjab. And so I want to announce today that Sahib Gun Basin will lead the chapter of our Tri-City IT Entrepreneurs in Ludhiana as Ludhiana IT Entrepreneurs. He's a very energetic person. He's very passionate. I know him from many months in past, and I saw his activities. He's very passionate. So that is why we decided to make him president. We decided this thing
uh, 2 3 months ago, as Sahib Gun also knows, and now the time has come to announce that thing. So Sahib Gun Basin, I want to invite you as a president of Ludhiana IT entrepreneurs, and Thank you, Vivek ji, I, very much. yeah, yeah, and I want Vivek ji, you I think to, let's yes, we move ahead of this webinar. yes, Uh, yes, okay. So, as you all know, as we already discussed, that this webinar is all about technology. When we talk about कि मैं हिंदी में बोलूंगा अभी क्योंकि मुझे लगता है कि काफी ऑडियंस है जो इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से नहीं जान सकती, तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा टर्म है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बट हमें खुद को नहीं पता कि हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं. लाइक इफ यू गो फॉर अ मोबाइल फोन इटसेल्फ इज अ टेक्नोलॉजी बट हम इसको डेली यूज में इतना यूज कर रहे हैं कि लोग मानते ही नहीं है टेक्नोलॉजी का पार्ट है. लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं हम, और वेदर हम अगर कहें कि हम एयर कंडीशनर यूज करें, एसी लगा हुआ है हमारे घर पे, तो एसी भी तो टेक्नोलॉजी है, कभी ना कभी वो टेक्नोलॉजी हुई थी. तो इट्स रियली बिकेम रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी वुड सम डे वुड बिकम अ डेली पार्ट ऑफ आवर लाइफ. And it was my privilege that with Tri-City IT entrepreneurs that we are doing this webinar. So let's go through that. So Manoj ji, before starting, I would like to know your expertise as you are working in industry as a developer for a long time. What do you think that what's happening in the industry right now? What's happening in our ecosystem right now? Hello, hello Manoj ji. Yeah, can you hear me? Yeah, now I can Yeah, hear you. so I would like to say that IT industry is growing from last 2 decades, emergingly, and everyone is the part of this industry. So from last 20 years, you can say, as you say in starting, that mobile phones and machines and automation is there. So there are a lot of things in our daily life which is coming from technology basically. So one of the main thing is like you can say automation of everything. So IT industry is automating the things and that is making our life smoothly. So I would like to introduce some technologies which are coming and evolving these days, and which will help us and our which will help humans basically to grow and make their life better in future basically. So first of all, I would like to introduce IoT basically. So you know that Internet of Things is right now well-known things, and every person is using internet in their daily business. Customers and business channels are working on that. And the second thing I would like to introduce artificial intelligence. So in industries and in basically your home appliances, robotics and other parts, banking systems are using artificial intelligence. They are very fast. They understand your commands. You just need to give the commands to those machines, and they will compute everything very fastly. So, and third thing is, I would like to say some technology in internet, basically for 3G, 4G, and now 5G is coming in future. So that will be a good part of data processing fastly, very fastly. Uh, some things are blockchain system that is more secure to transfer the currency and to secure your data when you are transferring from one place to other place. Uh, another As things, so yeah, you mentioned of IoT. yeah, So as per I know, Amanpreet Singh has an expertise in the area of IoT. He's been right. working in the cybersecurity field and he has worked on IoT basis. And if IoT topic has been touched, I would like that Aman to say some words on IoT too. Hello, Aman.
हाँ जी, हाँ जी। तो साहिब जैसे मनोज सर ने बात करी है आईओटी के बारे में, तो आईओटी अगर मैं अपनी फील्ड के रिगार्डिंग बात करूँ तो एक ऐसी फील्ड है, पहले मैं उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो बताता हूँ। आईओटी क्या है कि आपका फ़ोन जो है वो स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्टेड है, एंड फ़ोन जो बल्ब के साथ कनेक्टेड है, तो ऑल द डिवाइसेज़ जो हैं वो खुद के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं, तो उसे आईओटी कहते हैं बेसिकली। तो इसका अगर मैं मेन अपनी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये है कि अगर आपका एक डिवाइस अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपके अदर डिवाइसेस जो हैं जो उसके साथ कनेक्टेड हैं उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि अटैकर या हैकर जो है वो उस चीज तक पहुंच सकता है। तो इसकी अगर एक छोटी सी एग्जांपल भी मैं दूं आपको कि आपने घर के अंदर एक कैमरा लगा दिया है, मोस्टली सभी ने लगाया होता है, तो वो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट है या आपके वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, तो हो सकता है कि उसके ज़रिए अटैकर जो है वो आपके कैमरे को असेस कर पाए। तो सिक्योरिटी का जो रोल है इस चीज़ में वो बहुत मेजर रोल है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आपने कैमरा लगाया है लेकिन अल्टीमेटली वो कैमरा आपको ही दिक्कत दे रहा है अगर वो किसी और को मतलब असेस दे देता है अपना जो जहाँ पे भी कैमरा लगाया है आपने। तो आई थिंक सिक्योरिटी जो है वो मेजर पार्ट है हर चीज़ में, आईओटी में तो मेजरली चाहिए ही। और अपकमिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं अगर हम आगे भी बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में, तो सिक्योरिटी तो हर पार्ट में आएगी ही मेरे हिसाब से। तो दैट वाज रियली गुड। तो अभी देखो, टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, जितना मैंने आज तक समझा टेक्नोलॉजी को, कि टेक हम कहते हैं कि बिजनेसेस टेक्नोलॉजी बनाते हैं, काफी कॉर्पोरेट हाउस है जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। बट ये भी देखा गया है, मैंने काफी कोर्स में काफी बड़े लोगों ने कहा हुआ है कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो एक बहुत अच्छा आपका एसेट भी बन सकता है, बट अगर टेक्नोलॉजी मास्टर बन गया तो टेक्नोलॉजी बहुत डेंजरस भी बन सकता है। एंड इस चीज को देखने के लिए मैंने काफी साईफाई मूवीज में, मैं बहुत साईफाई गीक हूँ, मैं गीक टाइप पर्सन हूँ, तो मैंने आई हैव नोटिस दिस कि हम जो चीज हम साईफाई मूवीज में कहते हैं कि हाँ दिस टेक्नोलॉजी शुड बी मेड पब्लिक, दिस टेक्नोलॉजी शुड बी कम इन रियल लाइफ, जैसे कि हम वैसे ही एक टेक्नोलॉजी आई भी आज अभी के दिनों में, जैसे न्यूरालिंक का आजकल डिस्कशन चल रहा है, इलॉन मस्क बहुत मार्केटिंग कर रहा है न्यूरालिंक की। उसने एक टेक्नोलॉजी बनाई न्यूरालिंक। न्यूरालिंक कैसी टेक्नोलॉजी है, दैट्स अ चिपसेट जो आपके ब्रेन सेल्स में लगते हैं, एंड जब वो आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं वो आपके माइंड को ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे किसी को प्रॉब्लम आती है, याददाश्त में कोई प्रॉब्लम है कि मेरी याददाश्त कम है या कोई प्रॉब्लम है, न्यूरालिंक आपकी ब्रेन मेमोरी को फास्ट कर सकता है। अगर किसी को पैरालिसिस अटैक से आ जाता है कि नर्व्स उसके ब्रेन के वर्क नहीं कर रहे सही से, तब न्यूरालिंक उसको ठीक कर सकता है, आपकी ब्रेन की वर्किंग एफिशिएंट कर सकता है, ताकि बंदे की मेंटल फिटनेस बहुत अच्छी रहे। एंड सो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट न्यूरालिंक। तो रूबल जी यहाँ पर है, तो उन्होंने काफी रिसर्च की है, जब मैंने बात की थी उनसे, तो आई वुड लाइक टू टेक हर ओपिनियन कि वो न्यूरालिंक के ऊपर क्या अपना बता बता सकते हैं हम लोगों को। हाय साहिबुल। जो ये न्यूरालिंक है, न्यूरालिंक चिपसेट, ये लाइक थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर है जो हम ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है। और इसका जो साइज है वो हम कह सकते हैं कि हमारे हेयर से भी बहुत छोटा है। इट्स ऑलमोस्ट 4 to 6 माइक्रोमीटर। तो जब ये लाइक ब्रेन में अटैच कर दिया जाता है, आफ्टर दैट ब्रेन की जो न्यूरल एक्टिविटी होती है दैट कैन बी असेस्ड, दैट कैन बी एनालाइज्ड। एंड जैसे कि एलन मस्क का कुछ ही दिन पहले एक लाइक वेबिनार हुआ था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो ऐसे न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू इम्प्लांट इट, ट्राई टू इम्प्लांट इट इनटू अ पैरालाइज्ड पर्सन। तो वो जब पैरालाइज्ड पर्सन में इम्प्लांट करेंगे, लाइक दे विल चेक कि वो बंदा जो है पैरालाइज्ड है, कि वो वर्ड्स फॉर्म कर सके कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो इस तरीके से उनकी बात हो सके। तो ये जो न्यूरालिंक है, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स क्वाइट अ गुड थिंग। मीन्स ये अगर हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो इट माइट बी वेरी बेनिफिशियल। जैसे कि न्यूरालिंक हम सभी को पता है इलॉन मस्क लेकर आ रहा है, तो एक फन फैक्ट है कि कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल के, आप पिछले साल की बात लगा लो, मार्क जकरबर्ग वाज प्रमोटिंग एआई, एंड इलॉन मस्क की वर्डिंग थी कि एआई अगर आ गया तो ह्यूमंस के ऊपर राज करना शुरू कर देगा, मतलब कि वो मास्टर बन के डेंजरस बन जाएगा ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो रूबल जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि न्यूरालिंक एक ऐसी चिपसेट है जो आपके ब्रेन को रीड एंड राइट कर सकती है, ठीक है? अब यस।
वो इलॉन मस्क ने अगर इसको एआई से कनेक्ट कर दिया, जिसके वो खुद खिलाफ है कि वो ह्यूमन को कंट्रोल कर लेगा एआई, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आगे हो सकता है, क्या फ्यूचर है न्यूरलिंक का? ऐसा हो सकता है कि न्यूरलिंक की ह्यूमन को ही चलाना शुरू कर दे अपने स्लेव की तरह? देखिए, जो अभी तक हुआ है, अभी तक जैसे पिग्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, मंकी पे एक्सपेरिमेंट हुआ है एंड रैट्स पे हुआ है। तो इसमें जो है वो जस्ट उसकी जो न्यूरल एक्टिविटी है उसको अभी तक तो एनालाइज किया गया है। ठीक है, कि उनका जो ब्रेन है उनकी एक्टिविटी क्या हो रही है, और न्यूरलिंक जब वो रिमूव कर देते हैं उसके बाद वो जो मतलब एनिमल है। जी। तो मुझे लगता है रूबल जी से कनेक्शन ब्रेक हो गया है। तो विवेक जी, मैं आगे बिजनेस पर्सपेक्टिव के ऊपर आना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के। अभी रिसेंटली आप देखो, मैं रिसेंट न्यूज को लेकर जाऊंगा कि जो सी रिसेंट न्यूज आ रही है इंडिया में स्पेसिफिकली। इंडिया जैसे बैन कर रहा है काफी चाइना की एप्स को, लाइक टिकटॉक बैन हो गया, पबजी बैन हो गया, जेडिट बैन हो गया, काफी बड़े बड़े एप्स इंडिया ने बैन किए हैं रिसेंटली। तो उसका इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है फिलहाल के टाइम? आप इसमें कुछ व्यूज अपने देना चाहें? हाँ, तो जैसा आप बोल रहे हो टिकटॉक बैन हो गया है, पबजी बैन हो गया है। अब देखो, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्वॉट एनालिसिस देखो, स्वॉट एनालिसिस में ओ क्या है? अपॉर्चुनिटी, राइट? अभी एक स्पेस बनी है इंडियन आईटी एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो नई एप्स बनाए, नई गेम्स बनाए, और टिकटॉक के, पबजी के अल्टरनेटिव्स इंडिया में बने। जैसा आप सभी को पता है, मित्रो एक ऐप है जो कि एक आईआईटी ने बनाई है, ठीक है? काफी मिलियंस में डाउनलोड्स हैं उसके। तो वो भी इंडियन ऐप है, राइट? एंड ऐसी जो अपना टिकटॉक जैसी एप्स हैं, मेरे भी काफी आईटी एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड हैं, उन्होंने भी बनाई हैं, ठीक है? और अभी रिसेंटली मैं बताऊं, एक हमें भी कॉन्ट्रैक्ट बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट की। तो वो एक म्यूजिक कंपनी है, काफी बड़ी म्यूजिक कंपनी है पंजाब की। तो उन्होंने भी टिकटॉक जैसी ऐप बनानी है। सो मेरी एक आईटी कंपनी है जिसका मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, तो दे विल मेक दैट थिंग। सो ये जो एप्स बैन हुई हैं चाइनीज, दिस इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन आईटी एंटरप्रेन्योर्स। और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि टुगेदर वर्ड, राइट साहिब जी? टुगेदर वी कैन मेक दीज एप्स, वी कैन डू whatever, you know, uh, the whole world is doing. We together, Indian IT entrepreneurs together, can do that thing. So that's my point. Thank you. विवेक जी, इससे मुझे एक और क्वेश्चन आया। जैसे कि आपको भी पता है कि टिकटॉक बेशक बैन हो चुका है, बट काफी न्यूज में है कि इसका कमबैक हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, मैं ये क्वेश्चन सभी से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है अगर टिकटॉक वापस आती है तो क्या जो उसके पुराने यूजर्स थे वो टिकटॉक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगर वापस आती है किसी भी टर्म्स में? Okay. सभी से ये क्वेश्चन है। So who should reply first? I आपसे think पहले था, आप पहले कर दीजिए। yeah. Okay. या सो जैसे आपको पता है कि टिकटॉक की बात है, टिकटॉक ने अभी भी रिसेंटली मैंने न्यूज पढ़ी थी, टिकटॉक का आई थिंक जो टर्नओवर है इंडिया में वो 45,000 करोड़ का उनको आई थिंक प्रॉफिट होता है, आई थिंक सो। मैंने न्यूज पढ़ी थी फ्रॉम इंडिया। एंड वो लॉस भी हुआ है अभी रिसेंटली कुछ टाइम में, इतने मनी का उनको फ्रॉम इंडियन यूजर्स। तो अभी एक न्यूज आई थी टिकटॉक के रिगार्डिंग कि टिकटॉक अपने सर्वर्स को रेडी है इंडिया में भी शिफ्ट करने को, और यूएस में शिफ्ट करने को, कहीं भी शिफ्ट करने को रेडी है। क्यों रेडी है? सो दैट टिकटॉक कैन कम बैक इन इंडिया। और टिकटॉक भी अपने नाम के साथ इंडियन वर्ड यूज करना चाहता है। जैसे Xiaomi क्या करता है कि इंपोर्ट करता है पार्ट्स चाइना से, इंडिया में असेंबल करता है। इंडिया में Xiaomi के 30,000 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है जी। और जो उनकी फैक्ट्रीज है
उनमें सभी वुमेन एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जॉब्स मिलती हैं, यहाँ पर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं इंडिया में टिकटॉक के थ्रू, और इंडिया में ही डेटाबेस आता है, then I think obviously market is open to everyone, right? So we should appreciate TikTok then, so that more jobs जी should be created. So in that अनुज जी, case, मैं आपके पास सेम क्वेश्चन के साथ आऊंगा, आप अपने भी व्यूज बताएं प्लीज। हेलो। तो मुझे लगता है मनोज जी के साथ Yeah, कनेक्शन ब्रेक। yeah, I can hear you. So, yeah, I think that if TikTok follow the norms of Indian IT security and all the things, then that will welcome in India. But I think once a trust is break somewhere, so it will affect the business also. So that is my viewpoint. तो जैसे आपने बोला कि सिक्योरिटी नॉर्म्स इंडिया के फॉलो अप करें, तो अमन जी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा सकता है, जैसे हमारे वेबिनार के एंड से कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं कि जो टिकटॉक को फॉलो करने पड़ेंगे इंडिया में आने के लिए, और क्यों इम्पोर्टेंट है। साहिब, अगर वैसे मैं एक बात पहले पर्सनली बताऊंगा कि मैं टिकटॉक का हेटर हूँ, वैसे मैंने कभी यूज नहीं किया टिकटॉक। तो दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि टिकटॉक जो है वो चाइनीज, मतलब चाइना की जो बनाई हुई है, चाइना की ऐप है। तो अगर वो अपना सर्वर वहां पे यूज करते हैं, चाइनीज ऐप अगर इंडियंस यूज करते हैं, तो डेटा जो है वो अल्टीमेटली हम उनको दे रहे हैं, अपना जो सिक्योर डेटा है, अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं। और ये भी नहीं पता कि वो ऐप कौन सी परमिशन लेती है। मतलब जब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से, तो वो कुछ परमिशंस लेती है जिसे हम फटाफट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसका नहीं पता कि वो कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन लेती है टिकटॉक, या कैसी कैसी जियो लोकेशन भी लेती है, जीपीएस कैप्चर करती है। तो वो चीज़ें यूजर को नहीं पता लगती, लेकिन बैकएंड पे वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो आई डोंट थिंक कि टिकटॉक को आना चाहिए इंडिया में। और अगर इंडियन भी कोई ऐसी ऐप बनाते हैं, तो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारे जो लोग हैं इंडियंस, वो पागलों की तरह उसे फॉलो करें और सारा सारा दिन टिकटॉक पे ही लगे रहें। तो इस चीज़ को मैं हेट करता हूँ। ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है। तो जैसे आपने बात कही, तो मैं इस पे कुछ और चीजें भी ऐड करना चाहता हूँ कि लोगों लोगों को मैं कुछ फन फैक्ट्स टाइप बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों को कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे अमन जी ने बोला था कि डाटा का आपका यूज होता है, आपकी लोकेशन का यूज होता है, आप कैसी कैसी वीडियो सुनाते हो, उस सभी का यूज करता है टिकटॉक। तो जब वो डेटा आप भी गूगल आगे पे बिकता है साहिब, वो डेटा भी आगे कंपनीज को बिकता है। इंडियंस का डेटा हाँ जो जी, है वो आगे सेल हो जाता है। राइट। तो लोगों को लगता है कि जब हम गूगल में सर्च करते हैं ना, तो वो फ्री है, बट लोग ये नहीं समझते कि गूगल की भी सर्च काइंड ऑफ आपका डाटा ले रही है। आप क्या सर्च कर रहे हो, कौन सी लोकेशन से सर्च कर रहे हो, आपकी पूरा एक आइडेंटिटी का वर्चुअल इमेज बनाता है गूगल पीछे बैकग्राउंड में, और वो आपको ही यूज करके अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जैसे आपको एड्स शो कर रहा है या किसी कंपनी को शेयर कर रहा है, अपना कोई प्रोडक्ट निकाल रहा है, जैसे गूगल ग्लास हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल एडवर्ड्स हो गया, काफी गूगल के प्रोडक्ट आप ही बना रहे हो। तो ये मैं चीज ऐड करना चाहता था। सो अगर हम गूगल की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट एआई। गूगल असिस्टेंट जो अभी तक का सबसे मोस्ट यूज वर्चुअल असिस्टेंट है किसी भी मोबाइल फोन में। आप एक गूगल असिस्टेंट आ जाता है हमारे पास, सीरी आ जाता है, एलेक्सा आ जाता है, बट गूगल असिस्टेंट परसिस्टेंटली अभी तक टॉप में है, बिकॉज उनके पास जो डाटा है वो किसी के पास नहीं। तो रूबल जी की एक्सपर्टीज में एआई भी कहीं पर आता है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि एआई के आगे क्या होने जा रहा है। Saibun, I would like to tell you something about artificial intelligence. Like in the past few years, artificial intelligence has quite evolved into a powerful tool, and it enables machines to think and act like humans. I mean, it's more like a simulation of human intelligence, and it uses computer vision and voice recognition. Uh, so I would say that artificial intelligence has quite strengthened its territory. I would like to say that. And it has various applications like we can say healthcare, robotics, and education. Like in education, it can be used to check the answer sheets, like using this computers and using artificial intelligence itself. And it is used in businesses as well for data
analytics also. So artificial intelligence, I would say that is a very important field in today's domain. Right. तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं एआई के रिगार्डिंग, हम और भी बातें करेंगे और काफ़ी कुछ आपको पोस्ट मिल जाएगी टेक्निकी में भी डली हुई कि एआई कैसे आगे एडवांस जा रहा है। तो इसमें मैं अब ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करूंगा। और अभी मेन जो सा ऑब्जेक्टिव होता है इंडिया में जो हम देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल भी कहते हैं कि मुकेश अंबानी, जियो, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड बहुत ही अभी इन्वेस्टमेंट कर रही है काफ़ी कंपनीज में, अपने काफ़ी कंपटीटर्स खरीद रही हैं, जैसे फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया उन्होंने, जियो फोन में भी अपडेट अनाउंस कर दिया, जियो ग्लास अनाउंस कर दिया, बहुत कुछ जियो में कर रही है और ज्यादातर वो आईटी लाइंस में डेवलपमेंट कर रही है। तो आई वुड लाइक टू टेक द वर्ड फ्रॉम बोथ मिस्टर विवेक जी एंड मिस्टर मनोज जी, कि आपको क्या लगता है कि ये जियो क्या कोई बड़ा धमाका करने लगी है इंडस्ट्री में, बाकी की आईटी कंपनी उनसे कम्पीट कर पाएगी कि नहीं, कि जैसे 5G स्पेक्ट्रम में भी 5G डिवाइस अपना वो खुद का लेकर आ रहे हैं आप। तो who should speak first? विवेक जी आप ही बोल दीजिए। हाँ जी। सो अगर आप मेरे को अलाउ करो साहिब जी, मैं थोड़ा सा डेटा के बारे में बात करूं, जो आपने अभी रिसेंटली बात की, यू नो। हाँ, गूगल के बारे में बात की आपने कि गूगल डेटा लेता है, राइट। टिकटॉक के बारे में अमन जी ने बोला, राइट, कि टिकटॉक भी डेटा लेता है। उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। सो जैसे आप सभी को पता है कि यूरोप ने इसी को लेकर एक स्टेप लिया था अभी, और उस स्टेप का नाम है जीडीपीआर, ठीक है। तो जीडीपीआर क्या है? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। उसमें क्या है जीडीपीआर में कि यूजर को राइट है कि वो अपना डेटा देना चाहता है कि नहीं देना चाहता, और यूजर सब कुछ है, यूजर इज द ऑनर, राइट, इन दैट थिंग। और यूजर इज, यू में से, इज द किंग, राइट, ऑफ इंटरनेट इन जीडीपीआर। तो जैसे अमन जी ने बोला, जैसे साहिब जी आपने बोला कि अमन जी ने बोला कि टिकटॉक जो अपना यूजर्स है उनका डाटा सेल करता है, रखता है अपने पास। आपने साहिब जी बोला गूगल स्टोर करता है डेटा, राइट। और गूगल के सीईओ ने अभी यूएस कांग्रेस में भी इसके रिगार्डिंग काफी आंसर्स दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसरिंग हुई है उनकी काफी। सो इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर? आंसर इसका एक ही है कि जैसे यूरोप ने जीडीपीआर लागू किया है वहां पर यूरोप में, सिमिलरली इंडिया में भी जीडीपीआर अगर हो, इफ हो, तो एवरीवन विल बी यूजर्स। एवरीवन में भी कौन? यूजर्स, ठीक है। हम तो आईटी एंटरप्रेन्योर्स है, वी नीड डाटा, राइट, एवरीवन नोज दैट। बट एंड users will become the owner. So that's my point on the data thing, right? जैसे मैंने बोला कि टिकटॉक सर्वर्स इंडिया में लेकर आए, राइट, उसके बाद जीडीपीआर बने, राइट। तो यूजर्स विल बी वेरी हैप्पी विद दैट थिंग। सेकंड पॉइंट जो आपने बोला जियो का, कि जियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, राइट। अभी जैसे हम सभी को पता है कि फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट की है जियो में, 7% इक्विटी लिया है in 43,000 करोड़, राइट। तो गूगल ने भी इन्वेस्टमेंट की है। सो ये जाइंट है, टेक जाइंट दोनों, फेसबुक भी, गूगल भी, राइट। तो अब आगे क्या होगा कि जियो जो है, देखो सभी को पता है जियो ने जो 4G का नेटवर्क है पूरे इंडिया में काफी ग्रो कर लिया है, ठीक है। तो अब जियो क्या करेगा, जो मोबाइल एप्स हैं, राइट, वो भी काफी डेवलप करेगा, ठीक है। और जो मेरी थिंकिंग है कि जियो एक प्ले स्टोर जैसा ही प्लेटफॉर्म डेवलप कर देगा आगे, आई थिंक सो, ठीक है। और वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी उसकी गूगल से भी डील हुई है जैसे आपको पता है, एक वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाएंगे अपना खुद का फॉर मोबाइल डिवाइसेस। सो जियो क्या कर रहा है कि जो गूगल ने किया है वो गूगल, जैसे मैंने बोला टुगेदर वर्ड, साहिब जी, जियो एंड गूगल टुगेदर विल मेक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, दे विल मेक न्यू platform similar to Play Store,
और वो मतलब जाइंट बनेंगे आगे इंडिया का। और हमें क्या करना है एज आईटी एंटरप्रेन्योर्स इसमें? व्हाट इज द रोल ऑफ आईटी एंटरप्रेन्योर्स, राइट? हम जैसे हमने कम्युनिटीज बनाई है, ट्राई सिटी आईटी एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है जी, और काफी कम्युनिटीज है, राइट? और काफी कम्युनिटीज का मैं और भी आपको पता है, ठीक है जी, मैं एसोसिएटेड हूँ काफी और कम्युनिटीज में, और लीड भी कर रहा हूँ कुछ कम्युनिटीज को। तो हम सभी कम्युनिटीज को इकट्ठे रहना है, टुगेदर। जैसे मैंने बोला, टुगेदर इज ए वेरी बिग वर्ड। टुगेदर रह के हम सभी मिलके भी जियो के साथ टुगेदर, कम्युनिटीज ऑफ इंडिया एंड जियो टुगेदर कैन डू एवरीथिंग, एज आई सेड, ठीक है जी। तो फिर एक बड़ी चीज होगी। और जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी बोला है कि लोकल से वोकल करो और वोकल से इंटरनेशनल करो, राइट? तो हमें क्या करना है कि देखो, हम इंडियंस हैं साहिब जी। पंजाब में काफी जैसे मैंने बीटेक की है साहिब जी, आपने भी साहिब जी, आई थिंक, एम आई राइट? मेरे को करेक्ट करना, बीटेक की है, राइट जी साहिब जी, राइट? हाँ। तो बीटेक स्टूडेंट्स जो है पंजाब के, वो क्या करते हैं बीटेक करने के बाद सीधा फॉरेन, राइट? आप में और हम में, और मनोज जी भी हैं इधर, तो मनोज जी, करेक्ट मी, यू आल्सो डिड बीटेक, और व्हाट इज योर, Yeah, आई मीन? yeah. My higher education is MCA with MBA also. बस, तो MCA is equivalent to BTech, obviously. Manoj ji is a BTech, BTech is equal to, you may say, yeah. MCA and BTech both are same thing. And basically, BTech is a bachelor degree, MCA is a master degree, right? So Right. higher degree, I will say. So he has done MCA. So we all have chosen to stay in Punjab, in India. And this is our state, this is our country. And we have to do, everything for this state, for this country. And that is why, Sahib ji, we have made communities, right? So that is the main motive. So that's what I want to say, Sahib ji. Thank you. Yeah, विवेक जी, please हमारे start रहे पास थे, time क्या बोल रहे हो? हाँ जी। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मनोज जी, आप भी इसमें एक पॉइंट दे दो, फिर एक दो क्वेश्चंस और, देन विल रैप अप टुडे। आप भी इसी के ऊपर पॉइंट दे दीजिए, अपना ओपिनियन दे दीजिए। मेरा ओपिनियन थोड़ा सा, जैसे विवेक जी ने बताया कि फेसबुक और बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही गूगल ने भी 33,000 करोड़ रुपए, 7.7 स्टैक जियो प्लेटफॉर्म को दिया है, ठीक है। तो ये सभी के बड़े ब्रांड्स हैं एक्चुअली। जियो इंडिया में मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री में के बहुत बड़ा मतलब इसने धमाका किया हुआ पिछले कुछ टाइम से। और बाकी सभी जितनी भी ऑल टेलीकॉम कंपनी है, सभी कम्पीट करने की कोशिश कर रही है उसको, जियो को। जियो ने इंटरनेट में अपना बहुत बड़ा मतलब 4G लेके आया मार्केट में, और मोबाइल फोन्स और एवरीथिंग दे गिव टू इंडस्ट्री and peoples. Right now they are launching lot of things like 5G. They are like developing their own 5G technology, in-house 5G technology basically, and they will launch that soon. And they will try to grab all the fields, all the market in India. Basically, JioMart is there, JioGlass is there to uh, take the webinars and seminars with right now that COVID is there, and technology is emerging to talk online conferencing. So for students, for companies, they are evolving the technology right now. So Jio is doing very good, and they have a very big future in industry basically. मनोज जी, इसमें मुझे क्वेश्चन आया था, मैं अभी थोड़ा लैप्स कर रहा हूँ, तो मैं वो बाद में पूछूंगा। सो हाँ, तो एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट जो सा हम देखते हैं कि, हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि व्हाट अगर जियो आ रही है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जियो आ रही है, जियो हर लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट जैसे एक नया स्टार्टअप होते हैं, इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसको ये चीज जियो के कैसे इम्पैक्ट करेगी? उनके लिए अच्छा है कि बुरा है ये चीज? मनोज जी, ये आपसे या क्वेश्चन है। या सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्टार्टअप्स को तो
कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दे आर डूइंग द स्टार्टअप फ्रॉम देयर थिंग। और जियो भी अभी मतलब अपने अब जो भी कंपनीज है, अभी आप इंडिया की अगर बात करें या वर्ल्ड की कंपनीज की बात, टीसीएस, गूगल, ऑल ऑल आर डूइंग देयर इन देयर ओन फील्ड्स। तो मुझे नहीं लगता स्टार्टअप को कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से कि जियो कुछ टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, जियो अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, क्योंकि बाकी कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट्स निकाल सकती हैं। और बहुत सारी कंपनीज ऐसा भी होता है कि अपने ऐसे यूनिक प्रोडक्ट निकालती हैं कि जियो को अभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज मुझे निकालनी चाहिए मार्केट। तो जैसे हाँ जी मनोज जी, मेरा एक क्वेश्चन ये आपसे भी है और अमन से भी है, पहले आप बताना। ये है, जैसे हम देख रहे हैं इसका, फिर आगे मैं जॉब्स में भी लेकर जाऊंगा कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आपको अगर पता होगा तो गूगल ने अपना खुद का फ्रेमवर्क लॉन्च करे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आप हाइब्रिड एप्स बना सकते हैं फॉर वेब आल्सो फॉर मोबाइल आल्सो। राइट। फ्लटर, मैं बेसिकली फ्लटर में कंसर्न है। तो फ्लटर के आने से, जैसे फ्लटर अभी वेब में आ रहा है, पूरी तरह आया नहीं है बट आ रहा है, तो उसके आने से बाकी के फ्रेमवर्क्स को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? गूगल का फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा ऊपर जा सकता है कि कोई और फ्रेमवर्क? किसकी ज्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है इन फ्यूचर? फ्लैटर अभी मार्केट में एक्चुअली आया है, वहां पर मार्केट में अभी ऑलरेडी दो तीन प्लेटफॉर्म हैं जो टॉप क्वालिटी में आते हैं, जिनको हाइब्रिड एप्स बोलते हैं। बेसिकली रिएक्ट जेएस इज इन टॉप ऑफ देम राइट नाउ। Right, right, right. तो रिएक्ट तो अभी अगले कुछ टाइम तक टॉप पे ही रहेगा मैं कहता हूँ, और उसके बाद में फ्लैटर अभी जस्ट ग्रो कर रहा है, तो धीरे धीरे लोग उसको सीख रहे हैं। तो दैट विल बी द मे बी द फ्यूचर इन, that is a good technology to learn and that will work in future also. तो हमें भी सीखना चाहिए नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, बट राइट नाउ तो रिएक्ट इज वर्किंग। मनोज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगले आने वाले 2-3 सालों में, क्योंकि ये साल तो हमारा गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट ईयर भी कोविड का थोड़ा सा तो इम्पैक्ट रहेगा अगर कोविड की वैक्सीनेशन भी आ जाती है, बट बिल्कुल। उसके अगले साल में क्या टेक्नोलॉजी है कि फ्लटर में शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट है और फ्लैटर, कि किसी या और? मैं तो कहता हूँ फ्लैटर इज गुड फॉर फ्यूचर एक्चुअली, बिकॉज दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। और गूगल अपने आप में लाइक एंड्रॉयड फोन्स एंड दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स in market. So Flutter, basically Flutter and Flutter works on Dart technology. So you have to learn Dart language for that. So Dart is very good for future, and you have to learn. Everyone in tech, newcomers should learn Flutter basically for their future. तो अमन, मेरा आपसे भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बट हम इधर डेवलपमेंट की नहीं, हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए, साइबर सिक्योरिटी में अभी अगर किसी ने जॉब लेनी हो या उधर अपना करियर परस्यू करना हो आने वाले 2-3 सालों में, उसको किस चीज पे तैयारी शुरू करनी चाहिए? कौन से फ्रेमवर्क्स करने चाहिए? क्या चीज करनी चाहिए? साहिब, अगर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो उसके टूल्स जो हैं वो डेवलपर टीम से अलग हैं। वो लिनक्स के ऊपर आते हैं टूल्स उसके। तो ऐसा नहीं है कि नई टेक्नोलॉजीज ये जो आ रही हैं, फ्लटर हो गया, रिएक्ट की बात करी जैसे सर ने, तो उसी हिसाब से अगर नए नए फ्रेमवर्क्स आते हैं मार्केट में तो उसके साथ साथ में उसके एक्सप्लॉइट्स भी हैं जो वो भी आते हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर नया फ्रेमवर्क आता है तो उसके रिगार्डिंग कई सीवीईज जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, कॉमन वल्नरेबिलिटीज। तो मेरे हिसाब से अगर करियर स्टार्ट करना है यहाँ से, तो हमें टूल्स के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, स्किल्स चाहिए जो हैकिंग के लिए रिक्वायर्ड है। हमें एक, मैं इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। एग्जांपल से आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको कार की एग्जांपल दूंगा मैं, कि अगर आप कार में से, अगर आपकी वर्किंग में से आपने कोई सिक्योरिटी फ्लॉज ढूंढने हैं, तो पहले आपको कार के पूरे आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि ये स्टीयरिंग है, ये गियर है। तो एक एक चीज कार की पता होनी चाहिए आपको। तो तभी आप उसमें से गलतियां निकाल पाओगे, सिक्योरिटी फ्लॉज ढूंढ पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको स्किल्स की भी रिक्वायर्ड है, मतलब 2-3 टाइप्स की कार आपको चलानी पड़ेगी, तब आप उसमें गलती निकाल सकते हो। लेकिन कोडिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको कार बनानी नहीं है, मतलब इंजन और ये सब चीजें बनानी नहीं है। तो गलतियां ढूंढने के लिए आपको जस्ट चाहिए कि उसकी चीज के बारे में पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर के बारे में। तो कोडिंग जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आपको इंजन बनाना नहीं है या कुछ चीजें बनानी नहीं है, गलतियां ढूंढनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है, आर्किटेक्चर कैसा है, जावा और बैकएंड के लिए फ्रंट एंड और डाटाबेस, ये सारी चीजों की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही आप उसमें गलतियां ढूंढ सकते हो। तो ये सब जो स्किल्स हैं ये रिक्वायर्ड हैं, और कुछ टूल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग से है। अमन, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये जस्ट जनरल क्वेश्चन है, इसका कोई टेक्नोलॉजी से इतना इम्पैक्ट नहीं है।
रिसेंटली अगर आपको ध्यान में हो, पिछले एक दो महीने पहले काफी वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर के हैक हुए थे। तो उसमें हैकर ने लिखा था कि मैंने बहुत कमाया है एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर कम्युनिटी, यू ट्रांसफर मी $1,000 इन बिटकॉइन ऑन दिस एड्रेस एंड आई विल पे यू 2 times। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि कोई भी सेफ है अभी इंटरनेट में, अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जैसे वेरीफाइड अकाउंट, बिल गेट्स, इलॉन मस्क जैसे कि लोगों के अकाउंट हैक हो सकते हैं। नॉर्मल हैकिंग कितनी डिफिकल्ट है जॉब पर्सपेक्टिव से? ये लोग कई बार डरते हैं कि हैकिंग यार बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। वो नॉर्मल पर्सपेक्टिव होता है कि मास्क पा के एनोनिमस वाला लोग कंप्यूटर में बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं ग्रीन स्क्रीन में। तो एक्चुअल वो हैकिंग सब वैसे होती तो है? वो सब जो आप बातें कर रहे हो साहब, वो मास्क लगा के वो सब फिल्मों में ही होता है, साउथ इंडियन मूवीज में ज्यादा दिखाते हैं। वो ऐसा असल में कुछ नहीं होता है। आपको जस्ट एक फ्लॉ ढूंढना है। कोडिंग जो एक एप्लीकेशन बनी हुई है उसके अंदर एक छोटा सा फ्लॉ जो होता है वही कई बार ज्यादा हार्मफुल हो जाता है कंपनी के लिए। और जो ट्विटर की आपने बात करी है, जो हैक हुए थे अकाउंट्स, वो हुए थे इंटरनल जो टीम है उसने डिस्क्लोज किया था कुछ, अगर आपने न्यूज प्रॉपर पढ़ी हो Yeah. तो। सिक्योरिटी जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वो सब देखने पड़ते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स भी होते हैं, फिशिंग अटैक्स होते हैं जो एम्प्लॉयज के ऊपर लगाए जाते हैं। तो हर एम्प्लॉय जो है उसको भी अवेयर होना चाहिए कि किसी लिंक्स के ऊपर या कहीं पे क्लिक नहीं करना। लेकिन अगर आपका इंटरनल एम्प्लॉय है, अगर वही करप्ट निकल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में, कोई यूजर सेफ नहीं है। और मेजरली राइट। वो जो हैकर्स टारगेट करते हैं वो टारगेट आपको नहीं करते, नॉर्मल यूजर्स को। वो चाहते तो नॉर्मल यूजर्स का डेटा भी लीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल गेट्स और सेलिब्रिटीज को चूज किया। तो ये भी एक राइट। पॉइंट है कि अगर हैकिंग होती भी है, अगर आपने सुना हो कि परसों की न्यूज है, एक पेटीएम मॉल का डेटाबेस का डेटा लीक हुआ था। तो राइट। उसमें भी आप पर्टिकुलरली आपको टारगेट नहीं किया जाता, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के अकाउंट को टारगेट किया जाता है फॉर फेम पर्पस। और रिसेंटली ऐसी चीज यूट्यूब में भी हुई थी, क्योंकि मैंने कल या परसों ही एक वीडियो देख रहा था, एक इंडियन यूट्यूबर है कैरी मिनाटी। सो ही वाज गिविंग एन इंटरव्यू, उधर उसने बताया था कि मेरे भी अकाउंट हैक करके किसी ने लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और बिटकॉइन मांग रहा है। एंड ही सेड कि वो आफ्टर रात को आफ्टर द ढूंढूंगा टिकटॉक वीडियो, इसको। हाँ जी। आफ्टर द टिकटॉक वीडियो ना, हाँ जी, हाँ जी, कैरी राइट। मिनाटी की टिकटॉक वीडियो। राइट, ये चीज हुई थी उसकी भी वहां पर। और सिमिलर टाइप का था कि बिटकॉइन में पैसे तो भेजो, फिर वापस आपको रिटर्न आ जाएगा। रूबल जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। जैसे आपको पता है कि अर्लियर क्रिप्टो करेंसी बहुत हाइप में थी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में हाइप में थी। बिटकॉइन ऊपर गया एंड काफी इंडियंस आगे थे बीच में। एंड उसके साथ ये हुआ था कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी, जिसके करके पूरा इंडिया का इकोसिस्टम बिटकॉइन और जितनी भी क्रिप्टो करेंसी में वर्क कर रहे थे बंद हो गया। अब रिसेंटली जैसे हुआ है कि 2 months अगो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को लाइक टीज किया है कि आप क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बनाओ इंडिया में वापस, सारी दुनिया यूज कर रही है तो आप क्यों नहीं यूज कर रहे? तो मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे इकोसिस्टम पे, हमारे इंडिया इकोसिस्टम में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कि बेनिफिट देखिए, है कि नहीं? जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे पुराना टाइम था तब मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। अब आजकल सब कुछ ही मोबाइल फोन्स पे चल रहा है, ठीक है। तो लोगों को खुद में चेंज लाने की जरूरत है। मतलब सारा सिस्टम जो है, सिस्टम में चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि चीजें जो हैं वो बदलती जाती हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही बदलना चाहिए। मतलब अगर हम एक ही जगह पे रुके रहेंगे तो फिर तो मतलब कोई काम ही नहीं चल पाएगा आगे, तो मतलब कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो आई थिंक जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हर चीज के कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स तो होते ही हैं, तो उन रिस्क के बारे में हम मतलब कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, ठीक है। उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि बिल्कुल ही चीज बंद कर दी। दैट्स ऑल आई हैव टू से। ओके। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के वेबिनार का। तो दिस क्वेश्चन फर्स्ट आई वुड लाइक विवेक जी टू आंसर, क्योंकि ये जॉब्स के रिगार्डिंग ही है प्योरली। कि विवेक जी, अभी जैसे ट्राई सिटी बिफोर प्री कोविड तो ट्राई सिटी आईटी एंटरप्रेन्योर्स ने काफी हायरिंग फ्लीट्स निकाले जहाँ पर काफी ऑर्गेनाइजेशंस हायरिंग कर रहे थे। तो अब आने वाले टाइम में जैसे पोस्ट कोविड हो गया, काफी लोगों की जॉब्स जा रही हैं, काफी एक्सपीरियंस लोग अब अवेलेबल फॉर जॉब हैं। तो क्या कंपनीज अभी फ्रेशर्स को हायर करना ज्यादा प्रेफर कर रही हैं या फिर एक्सपीरियंस वन को? ये क्वेश्चन पहले भी रेज हुआ था काफी जगह पे, इसका मैं चाहता हूँ कि आप आंसर दें प्लीज।
ओके। सो जैसे आपको पता है साहिब जी, आप तो हमारे साथ हो, साथ हाँ थे जी। पहले भी हो और साथ ही रहोगे हमारे। तो अभी मार्च में जब ये कोविड आया, 25 मार्च को लॉकडाउन लगा, उसके बाद मार्च में एक थॉट आया, ठीक है। मेरे को फोन आया मिस्टर सुशील पराशर जी का, फ्रॉम डेविएट जलंधर, जो कि टीपीओ है। उन्होंने बोला कि विवेक, डेविएट जलंधर एंड ट्राई सिटी आईटी एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, टुगेदर वांट्स टू डू वन ई जॉब फेस्ट, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने एक ई जॉब फेस्ट किया जिसका राइट। नाम था प्रयास, ठीक है जी। उस ई जॉब फेस्ट में 36 आईटी कंपनीज एंड नॉर्मल कंपनीज जो और फील्ड्स की कंपनी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 27 आईटी कंपनीज वर फ्रॉम ट्राई सिटी आईटी एंटरप्रेन्योर्स। एंड उस ई जॉब फेस्ट में जितने भी हमारे पंजाब के कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस में वो ई जॉब फेस्ट की इंफॉर्मेशन गई। एंड आई थिंक 3,000 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें, और 10,000 के करीब लोगों तक वो इंफॉर्मेशन मतलब वो सर्कुलेट हुई है। या आई थिंक उसमें क्या हुआ कि 10,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें से 3,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, राइट। और उसके बाद क्या हुआ कि जो नेक्स्ट राउंड था, देन 900 बच्चे फॉर फाइनल राउंड दे वर सिलेक्टेड। तो उन 900 बच्चों को हमने जो डेटा है 900 बच्चों का, वो 36 कंपनीज को हमने एक्सेल शीट भेजी डेटा की कि भाई आप इन बच्चों का इंटरव्यू लो, इनको हायर करो। और उसमें से 950 बच्चों में से नियर अबाउट 550 बच्चे हायर किए कंपनीज ने। और उन कंपनीज में 27 आईटी कंपनीज वर फ्रॉम ट्राई सिटी आईटी एंटरप्रेन्योर्स। और ये फर्स्ट ई जॉब फेस्ट था ऑफ पंजाब। तो ऐसे ई जॉब फेस्ट हम आगे भी करेंगे, ठीक है जी, फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स। और बहुत फ्रेशर्स के लिए, हाँ, फ्रेशर्स के लिए मैं एक और साहिब जी, वी हैव टाइम 2-3 मिनट्स। विवेक जी, हमारे पास 5 से 10 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ ओके ये जल्दी रैप अप हो तो बाकी सभी का भी ओके। इसमें सो फाइनल। मैं, हाँ, मैं फ्यू मिनट्स लूंगा और, ठीक है जी, रैप अप करने के लिए। सो ऐसे ई जॉब फेस्ट आगे भी होंगे साहिब जी। और जैसे मैंने बोला टुगेदर वर्ड, ठीक है जी, लुधियाना आईटी एंटरप्रेन्योर्स का चैप्टर आपका है, आपको मैंने बता ही दिया, आप हो उसके, ठीक है जी। लुधियाना आईटी एंटरप्रेन्योर्स हो गया, ट्राई सिटी आईटी एंटरप्रेन्योर्स हो गया, टुगेदर वर्ड, राइट। टुगेदर हम ऐसे ही जॉब फेस्ट करेंगे आगे, ठीक है साहिब जी। और जो हमारे पंजाब का यूथ है, जैसे आपको पता है अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, जो बच्चे हैं वो इंडिया ही रह रहे हैं, काफी बच्चों की फीस फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में सबमिट की हुई है उन्होंने, बट दे आर स्टिल इन इंडिया। तो विवेक जी, मैं हमें, इधर इंटरप्ट करना चाहूंगा हाँ, छोटा सा, ठीक है। हाँ जी, इंटरप्ट ये बेसिकली मेरा जो सब मेजर क्वेश्चन है कि हाँ, हम फ्रेशर्स हायर करें जिनके हाँ, पास एक्सपीरियंस, जो लोगों को पे करने की सैलरी नहीं है, वो फ्रेशर्स हायर कर लेते हैं, वो उनको सिखा के आगे यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको फ्रेशर के साथ साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा मिल रहा है, और एक्सपीरियंस कह रहा है मेरी जॉब चलेगी, अभी तो मुझे किसी भी हालत में जॉब चाहिए, और मैं इस सैलरी में डिडक्ट करके काम करने को तैयार हूँ, मतलब कि अगर मैं 40,000 कमा रहा था, मैं 30,000 में आने को तैयार हूँ, तो आप एक्सपीरियंस को वहां पर दोगे जॉब की फ्रेशर को दोगे? ये क्वेश्चन है, इसका मुझे बस छोटा सा एक लाइन का आंसर दे दीजिए सर। हाँ। तो देखो पता क्या है, हमें नेटवर्क को फॉलो करना है। मतलब एक जैसे ट्री होता है, इनहेरिटेंस आपने भी पढ़ा है कोडिंग में, इनहेरिटेंस को फॉलो करना है। इनहेरिटेंस क्या है? जो एक्सपीरियंस्ड है उसको भी हायर करना है, और जो फ्रेशर है उसको भी हायर करना है। अब उसमें क्या है, जो एक्सपीरियंस्ड है उसकी सैलरी ज्यादा होगी, ठीक है। राइट। उसकी सैलरी समझ लो 30,000 होगी, तो फ्रेशर की 15,000 होगी। अगर उसकी 60,000 होगी तो फ्रेशर की 30,000 होगी। तो फ्रेशर जो है आगे, जैसे मैंने बताया फ्रेशर क्या होंगे आगे, अभी हम आगे, जैसे आपने रिएक्ट नेटिव की बात की,
एक कंपनी शुरू करूंगा, ठीक है, मैं शुरू करूंगा, मेरे और सीईओ फ्रेंड है, तो हम इकट्ठे, जैसे मैंने बोला टुगेदर वर्ड, हम एक रिएक्ट नेटिव की ही कंपनी बनाएंगे आगे, ठीक है जी। तो उसमें हम फ्रेशर्स रखेंगे, और वो फ्रेशर्स होंगे जिनको पहले स्किल्ड करेंगे हम अच्छे से, ठीक वही है हो जी। गया जो सा नॉर्मल हमारा फ्री हाँ चलता है। हाँ, स्किल्ड करने के लिए क्या करेंगे रिएक्ट नेटिव में, जैसे आपने बोला एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड बंदा, जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको वो ऑनलाइन वेबिनार के थ्रू ट्रेन करेगा, या उसको कंपनी में बुलाएगा, ठीक है, जो मेरी सिस्टर कंपनीज हैं जहां का मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, इस वहां वेबिनार बुलाएगा वह। पार्टनर हाँ बनना चाहूंगा। हाँ, तो वहां बुलाएंगे, ट्रेंड करेंगे, स्किल्ड करेंगे, और फिर काम पे लगा देंगे उनको। तो टुगेदर वर्ड, इसमें भी टुगेदर है, एक्सपीरियंस्ड प्लस फ्रेशर टुगेदर, टुगेदर इज ए वेरी बिग वर्ड साहिब जी, नोट इट, ठीक है जी। गूगल जी, मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इसी रिगार्डिंग है, कहीं ना कहीं लिंक्ड है। जैसे मुझे पता आप एमबीए परस्यू कर रहे हैं, आप आगे कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो वहां पर स्टूडेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव होता है? बिकॉज अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, लॉजिकली कोविड के दौरान चल रहे हो, तो स्टूडेंट का क्या पर्सपेक्टिव है जॉब्स के रिगार्डिंग एंड आईटी लाइन के रिगार्डिंग? क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है अभी उनका? जस्ट देखिए, एक स्टूडेंट ओवरव्यू। जैसे मैं अब एमबीए कर रही हूँ, तो आजकल जो बिजनेस एनालिटिक्स है वो हर फील्ड में लागू होता है। एचआर में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, हर चीज में बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो लागू होता है। मतलब बंदे को उसकी नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप जो जिस भी फील्ड में कर रहे हो। तो जैसे कि आप पहले जॉब्स की बात कर रहे थे, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मोस्टली ट्राई करती हैं कि हम इंटर्न्स लें, क्योंकि इंटर्न्स को उन्हें कुछ पे नहीं करना पड़ता। कुछ वो होते शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म होते हैं में से वो बंदे सिलेक्ट कर सकते हैं आगे। जैसे होते तो एक हिसाब के फ्रेशर ही है ना, तो वो फ्रेशर्स राइट। होते हैं और इंटर्न्स होते हैं, और जो उनमें से बेस्ट परफॉर्मर होता है उनको वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आई मीन उनको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, दे कैन लर्न मोर स्किल्स। तो जो ये आईटी फील्ड है, आईटी फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टूडेंट्स जो आईटी के साथ जुड़ रहे हैं, मतलब बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह साथ साथ में सीख रहे हैं, तो आई थिंक दे विल ग्रो ग्रो क्वाइट ग्रो फर्दर। और जो मतलब इस चीज से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डर जाते हैं कि हमें तो ये चीज आती नहीं है और हम इसे नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ टाइम के लिए तो अच्छा चलेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्हें स्टार्ट हो जाएंगे अपने करियर में, क्योंकि जो बिजनेस एनालिटिक्स है वो तो फर्दर चलना ही है, अब वो बंद तो होने नहीं वाला, तो वो लें तो उनके लिए बढ़िया है। दैट्स ऑल। तो मनोज जी, आपसे भी मेरा वही क्वेश्चन है जो मेरा विवेक जी के साथ था, कि जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है आपके पर्सपेक्टिव से, कि आप एक्सपीरियंस को हायर करोगे कि फ्रेशर को हायर करोगे इस टाइम पे? एक्चुअली अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो फ्रेशर का और एक्सपीरियंस पर्सन का कोई कंपैरिजन तो है नहीं। अगर कोई 5 साल राइट। का बंदा एक्सपीरियंस पर्सन है और एक फ्रेशर के साथ उसका कंपैरिजन करें हम, तो वो तो कहीं भी मतलब होता नहीं है। बट फ्रेशर्स का क्या होता है कि फ्रेशर को आप तैयार कर सकते हो, आप हायर कर सकते हो फ्रेशर को फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक है। जहां पर मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं मुझे एक एक्सपीरियंस पर्सन भी चाहिए और मैं 2 पर्सन फ्रेशर भी रख लूं, तो बंदा इस तरह से मैनेज करके, मतलब मैं तो ऐसे ही मैनेज करता हूँ अभी राइट नाउ, कि मुझे एक्सपीरियंस पर्सन भी चाहिए और मुझे फ्रेशर्स भी चाहिए। तो मैं 2-3 फ्रेशर्स को हायर करता हूँ, उनको ट्रेंड करता हूँ और उनको उस एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में डाल देता हूँ। दैट इज। मनोज जी, इधर मैं आपको एक दे देता हूँ, एक एग्जांपल टाइप बना देता हूँ, तो उसमें आप बताइए उस सिचुएशन में क्या करोगे। सपोज आपकी कंपनी के पास आपको बजट आया 30,000 का बजट आया है, कि राइट। आपने 30,000 में कोई भी बंदा हायर करना है, ठीक है। अब आपके पास एक एक्सपीरियंस आ रहा है जिसको 40,000 सैलरी मिल रही थी, बट उसकी जॉब चलेगी कोविड करके, एंड ही इज सेइंग कि मैं 30,000 में आ जाऊंगा, आप मुझे हायर कर दो। और एक पास से आपको सेम फील्ड में एक फ्रेशर आ रहा है जो कहता है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है, मैंने 2 साल कॉलेज में प्रैक्टिस की है इस फील्ड में, बट मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, आप मुझे हायर कर लो। और फ्रेशर आपको कम रेट में आ रहा है, तो आप कौन सा लोगे? आप एक्सपीरियंस लोगे कि फ्रेशर लोगे इस केस में? मैं तो एक्सपीरियंस ही लूंगा उस केस में भी,
तो मेरा पर्सपेक्टिव, राइट। ठीक है। बिकॉज अगर मुझे काम कराना है तो उस केस में तो मैं एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करूंगा, देन यस। नहीं सर, इस पर्सपेक्टिव में ये देख लो कि आप फ्रेशर जो है आप वैसे एक दो फ्रेशर्स एक साथ ले सकते हो। एक पास से आपको डबल वर्कफोर्स मिल रही है सेम रेट पे, एक पास से सिंगल वर्कफोर्स, उस अकॉर्डिंगली क्या ज्यादा बेटर होगा? ये साहिब जी, ये डिपेंड करता है एक्चुअली कि मैं जो हायरिंग कर रहा हूँ वो क्या रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में। अगर मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है कि वो 1 महीने में खत्म होना, और मुझे एक पर्सन चाहिए जो उसको कर सकता हो, मतलब दैट इज द मेन थिंग। अगर मैं 2 पर्सन हायर भी कर लूँ तो मैं तो उनको ट्रेंड करने में रहूंगा, मतलब। राइट। अमन जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है? आपने अभी 1.5-2 साल हुआ है, आप हम दोनों एक साथ ही पढ़े हुए हैं, 1.5-2 साल पहले ही हमने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट कि आप जब ये जॉब सर्च कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी में, आपको कितनी डिफिकल्टी हुई या फिर आपके साथ वालों को कितनी डिफिकल्टी हुई इस प्रोफाइल में जॉब सर्च करने में? साहब डिफिकल्टी तब होती है जब आपके पास स्किल नहीं होती है प्रॉपर। तो अगर मनोज सर ने भी कहा कि स्किल्ड मैं और वैसे भी कह जैसे मेरा कहने का मकसद ये था, मुझे पता है आपके पास स्किल सेट है, आप शुरू से वी आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है? मुझे पता है आपके पास कितना स्किल सेट है। तो मेरा मेन पर्सपेक्टिव था कि जैसे साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में लोग मच अवेयर नहीं है, क्योंकि आपको याद हो जब हमने साइबर सिक्योरिटी में साइटोजन सिस्टम्स के अंदर काम शुरू किया था, तब कितने मुश्किल से हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहे थे, आ ही नहीं रहे थे स्टार्टिंग में। तो लोगों को अवेयरनेस कैसे होगी इस फील्ड के रिगार्डिंग, और अगर कोई आना भी चाहे उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी में ये साइबर सिक्योरिटी वाले हायर करते हैं? उस रिगार्डिंग मैं पूछ रहा हूँ, आपकी जॉब सर्च कैसे आप कर रहे हो? साहिब अगर अवेयरनेस की बात करी जाए तो अब तो जो है स्टूडेंट्स बहुत अवेयर हैं। कि हम अपनी ही बात करें, जब हम लास्ट ईयर में थे तो बाकी सारे जो थे स्टूडेंट्स वो जावा पीएचपी ये सब ट्रेनिंग लगा रहे थे, तो हमने कुछ डिफरेंट किया, 2-3 स्टूडेंट्स ने, कि हम सिक्योरिटी में लगाते हैं। तो उस टाइम के राइट। बाद अगर मैं एक बार कॉलेज भी विजिट किया था, मैंने 1-2 वर्कशॉप्स भी दिए हैं कॉलेज में। तो उस टाइम पे अगर मैंने देखा तो वो 3-4 की जो वो थी स्टूडेंट्स की, वो 15-20 हो गई थी। तो अगली बार मुझसे 15-20 बंदे हैं जो जिन्होंने मुझसे पूछा था कि कौन सी कंपनी में जाएं हम। तो वो जो है इंक्रीज हो रही है। अगर पहले सिक्योरिटी का लेवल यहाँ था अवेयरनेस पे, तो यहाँ चला गया है अभी ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनीज है जो ऑफर करती हैं। मैं कह रहा हूँ और कंपनीज को नहीं पता, काफी कंपनीज को नहीं पता। लुधियाना में मल्टी मिलियन डॉलर्स की कंपनीज भी है, कॉर्पोरेट्स हैं हमारे लुधियाना में भी, बट उधर भी कंपनीज को ये नहीं पता उनको साइबर सिक्योरिटी क्या चाहिए, क्यों नहीं, क्यों चाहिए। मैं उस पर्सपेक्टिव से कह लेकिन रहा हूँ कि अब अगर आप देखो तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी यूज कर रखी है, पेटीएम हो गया या सोनी हो गया, तो सारी कंपनीज ही हैक हो रही हैं। सो इनसे भी उन्हें अवेयरनेस चाहिए, मतलब चाहिए होगी कंपनीज को, कि अगर इतनी बड़ी कंपनीज का डेटा लीक हो रहा है, कुछ ना कुछ है, तो सिक्योरिटी तो जरूर चाहिए ही। और अभी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हर कंपनी में 1 या 2 तो मिनिमम है ही है सिक्योरिटी के जो एनालिस्ट की पोस्ट है, वो हर कंपनी ने अभी खोल दी है। जिनने उन्हें नहीं करी है अभी, वो भी कर रहे हैं स्टार्ट। राइट। तो आई थिंक दिस वाज अ गुड वेबिनार अप टिल नाउ। तो अब काफी टाइम हो गया, तो मुझे लगता है वेबिनार को क्लोज करने का टाइम आ गया है। तो बिफोर क्लोजिंग अ वेबिनार, ठीक है, मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट्स है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, टेक्निकी को नियरली 4 इयर्स होने लगे हैं इस 17 सितंबर को। हमने 17 सितंबर 2016 में टेक्निकी का डोमेन नेम रजिस्टर किया था। तो इस करके उसको ध्यान पे रखते हुए हमारी जो सी कुछ टीम है, करंट टीम है, तो वी आर डिसाइडिंग टू डू अ टेक्निकी रीयूनियन, जिसमें अमन जी आप भी पार्ट हो, रूबल जी आप भी उधर उस टाइम में थे जब टेक्निकी शुरू हुआ था। सो आई वुड लाइक कि जो सी उस टाइम पे टीम थी, हम उनका एक रीयूनियन वेबिनार करेंगे, ताकि लोगों को बताया जा सके जब हम कॉलेज में थे हमने टेक्निकी कैसे शुरू किया एंड हाउ वी यूज टू वर्क ऑन इट। एंड उसके बाद एक जो सा एनिवर्सरी स्पेशल होता है, तो एक और वेबिनार वी आर प्लानिंग ऑन 27 फेब। 27 फेब में हम कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को बीच में लेकर आना चाहते हैं जो कि हमारे CFI में थे, तो उसके पैनल को हम ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं। बेसिक साइबर फेस्ट इंडिया इस अप्रैल नहीं हो पाया, बट वी आर कमिंग इट इन नेक्स्ट ईयर। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम 27 सितंबर को वी माइट डू a very huge, a very good delegation of panelists जो से MNCs में है, इंटरनेशनल MNCs में है अमेरिका से, तो वो ज्वाइन करेंगे। तो आई हैड दिस अनाउंसमेंट्स एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू, मनोज जी, विवेक जी, रूबल जी, अमन जी, और हमारी जो सी बैक एंड टीम में भी है मिस्टर हनीक जी,
thank you very much for supporting this webinar and being part of it. And hope we all should collaborate again and do such a webinar. And next time it would be much more better because this was the first time Technique was doing a webinar. So first time is always a rough patch, and second time it would be much more better. So thank you very much for joining us, and hope you know a lot about technology through this webinar. Thank you. So here I close it. Okay, guys, live stream ऑफ हो चुकी है. Okay. तो विवेक जी अब ब्रॉडकास्ट खत्म हो चुका है, मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दी है. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया.